हाय गुड आफ्टरनून। कुछ लोग नए हैं। माई सेल्फ इज देवेंद्र हियर। आई एम टेकिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी एंड द सी सेट हियर। ओके, आपके जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स होंगे एज वेल एज द लोकेशंस इन न्यूज आई विल टेक केयर ऑफ इट, एज वेल एज द ऑल द प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स आई विल टेक हियर. Basic idea behind these classes कि you people can understand how to use the content of your classrooms in the examination. Content तो हर कोई पढ़ लेता है, but how to use that content, how the UPSC is asking question from that content is more important nowadays. सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम नहीं होगा. Where you should focus on. If the topic is for today is GM crops, so what kind of the question UPSC can ask? What kind of the prelims question UPSC can ask from those kind of the topics there. So we are going to focus on that kind of the informations ki after the each topic we are going to discuss the questions as well, and you people will be give the answer of those questions. You will listen, you will write, and you will give the answer of the questions. We will also see some of the mains question from the topics here. क्या क्या questions mains के लिए frame हो सकते हैं from the science and technology. If I tell you the weightage of these classes in a year, I am going to take the 12 classes, one class each month. This is the third one. This is the third classes. इससे पहले दो classes और हो चुकी हैं. If you people are not aware about it, you can watch on the YouTube itself. Every month एक होती है. So today the third classes of science and technology plus places in news. For the maximum benefit of these classes, you need to attend the classes. Every class आपको attend करना पड़ेगा. You need to make a separate notebook for the science and technology as well as the places in news. Why I am saying this? Because of it, if I am looking at the weightage of the subject in the prelims and the mains examination, I am saying here the science and technology contribute almost 12 to 14 questions. 12 to 14 questions in your prelims examination. And it also contribute 3 to 4 question in your mains examination. With it, places in news contribute almost 7 to 8 questions in your prelims examination. Science and tech से direct 12 to 14 questions आते हैं. Almost every question is from the current affair except one or two. And in the places in news, 7 to 8 question, every question from the current affairs. If I'm adding these both two, total 20 questions from 12 class. This is the third one, and I can guarantee more than 80% of the question you can attempt through these classes if you're attending regularly. And मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ. Last year also I take the classes. Almost 90% of the question are direct from the classroom videos or classroom content. तो आप डायरेक्टली उसको फॉलो करें, लिखें, एंड यू विल फाइंड आउट कि दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल व्हेन यू आर अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली. These 20 questions means 20% of your prelims paper are these two subjects जिसको जनरली इग्नोर किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी as well as the places in news. In the last 3 years, if you look at the weightage of the places in news, 2024 8 to 9, 2023 7 to 8, 2022 8 to 9 places directly पूछे गए हैं from the world location itself. So that's become why the places in news and science and technology become more important here. So what will be the basic flow of the class? In the every class, first we will discuss the places that are in the news in the last month. Then we will discuss the topics related to the science and technology. Topic related to science and technology. It may be 12 to 13 topics हो सकते हैं. Location can be 6 to 7 location and depend on the news कि कितना news इस month में रहा है, उसके accordingly locations in news भी होगा. Plus with each topic I will follow a, like I'm discussing the topic here, then there will be a MCQ related to that topics. That MCQ can be from the UPSC prelims or a MCQ that can be framed for the 2025 examination. उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे. We will also focus on the mains questions from the some topics that are important for your mains examination. So this will be the flow of the classes. Every class का यही flow रहेगा.
Class ka duration may be 2 hours, 2.5 hours, not more than that. We are going to take those minutes. So today we are going to discuss in science and technology. In science and technology specifically, we are going to discuss the genetically modified crops, GM crops. Then we will discuss the green hydrogen. Then we will discuss facial recognition technology. After that, we will discuss the 3-parent baby. Or in the bracket, we can say the mitochondrial disease. After that, we are going to discuss the lunar caves, some space topics, monoclonal antibodies, specifically the mobile virus, the specific name. ये आज हम discuss करेंगे specifically 8 to 10 topics we are going to discuss today. Before starting the new class, there is also a habit कि we are discussing the 5 to 10 minutes the last class. कि आपको कितना याद है last class से हमने क्या discuss किया था? Anybody who attend the last class? क्या क्या discuss किया था हमने? ये नहीं होना चाहिए कि बस हमें आगे का याद है कि पीछे क्या किया था, we don't know. हाँ, ट्रांसफैट के बारे में डिस्कस किया था हमने, ठीक है. एंटीडीज के बारे में डिस्कस किया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. जंपिंग जीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था. 8 to 10 लोकेशंस हमने डिस्कस की थी. एनीबडी कोई एक लोकेशन का नाम बता सकता है क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम? ईरान में लेक्स की बात की थी हमने. कौन कौन सी लेक्स हैं ईरान में? ऐसे तो काम नहीं चलेगा. योर अटेम्प्ट ईयर इज 2025 एवरीवन. सबका 2025 है. 26 है आपका. आपका 25 है. सो बी सीरियस. सितंबर आ गया है, मई में एग्जामिनेशन है. इन द लाइक 20th of May तक एग्जामिनेशन है. तो माई सजेशन इज इफ यू आर डूइंग एनी टॉपिक, कुछ भी आप कर रहे हो, ट्राई टू रिमेंबर दैट टॉपिक थ्रू द मल्टीपल रिवीजन. ट्राइंग टू नो द टॉपिक कि इसका रिलीवेंस क्या है एग्जामिनेशंस में एंड हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. अगर आप इन 3 चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मे बी यू आर रीडिंग लेस कंटेंट, कम कंटेंट पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल. So in the first 5 minutes, we are going to look at the topic that we discussed in the last class. The first we discussed about the Nord Stream. Nord Stream is a gaseous pipeline from the Viborg to the Greifswald. Greifswald in the Germany, Viborg in the Russia. Then the Ustaluga to the Greifswald. These are the Nord Stream 1 and the Nord Stream 2 we discussed in the last class. Detail के लिए आप वीडियो देख लेना, वहाँ पे होगा. And the Baltic Sea, the country bounding the Baltic Sea. We discussed the country bounding the Baltic Sea. I also told the mnemonics of it. What's the mnemonics? Root Germany, Cell, Poland and Finland. This is the mnemonics of the country bounding the Baltic Sea. Russia, Denmark, Germany, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Finland and Sweden. ठीक है. इस तरीके का क्वेश्चन हर बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में आता है. This year they asked the question of the North Sea, the country bounding the North Sea, because that time North Sea was in the news. Similarly, this time the Baltic Sea in the news, there may be a chance they can ask a question on the Baltic Sea.
After that, we discuss about the Iraq, then the lake in the Iraq. We discuss about the lake Raja in Iraq, lake Thar in the Iraq. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इसके बाद we discuss about the Techno Canal in the Fuan. Specifically, this is the canal from the Laos से जा रही है. Specifically, we looked at it. Then we looked at Cambodia and specifically the Tonle Sap Lake in the Cambodia and Mekong River के बारे में हमने देखा था in the Cambodia. After that, the Mount Canelon recently erupt हुआ था in the Philippines. Then we looked at the Mount Teclon. उसके आसपास में कौन कौन से mountains थे वो हमने देखे. After that, we look at the Lake Natron in Tanzania, and this become the most important one. It can be a direct question in your prelims. The Lake Natron, due to the climate change, the lake is going to be dry up soon. So that's why the Lake Natron was in the news, and it's in the Tanzania. After that, we discuss about the Denmark. Denmark में specifically the major pork and dairy exporter की वजह से that's was in the news, and Denmark है का उसके specifically North Sea and the country bounding the North Sea हमने देखा था. After that, we start the science and technology topic जिसमें हमने specifically trans fat elimination क्या है, neglected tropical disease क्या है, jumping genes क्या है, Artemis Accord क्या है, उनके बारे में discuss किया था. तो next class में आने से पहले जो हम discuss कर रहे हैं आज वो आपको याद होना चाहिए. तभी बेनिफिट होगा क्योंकि क्लास एक मंथ के बाद कंटिन्यूस होता है तो तब तक सारा फेड आउट हो जाता है. वी आर नोट नो कि लास्ट एक महीने में क्या किया था, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है. इफ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यू शुड रिमेंबर द फैक्ट्स, यू शुड रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लास, एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर. So today we will discuss the 5 to 6 location, then we are going to discuss the science and technology topics. So the first topic for today, recently there is a new World Soil Health Index. New Soil Health Index. Soil Health Index recently announced किया यूनेस्को ने in the place Morocco. मोरक्को में अनाउंस किया गया. प्लीज ट्राई टू राइट जो जो आपको समझ आ रहा है, प्लीज ट्राई टू राइट. क्लास के बाद आपको कुछ एक नोट्स मिल जाएंगे, बट प्लीज कीप राइटिंग विद द पेन ताकि आपका माइंड और हैंड दोनों साथ काम करते रहे. इट वाज अनाउंस्ड इन द मोरक्को बाय द यूनेस्को. So it's become important for us to read about the Morocco, where the Morocco is located, the boundary country of Morocco, and the soil health index है क्या specifically? The soil health index is we are checking the quality of the soil. It's rich in the different kind of the nutrients, different kind of the nitrogen nutrients के बारे में, iron nutrients के बारे में, macro micronutrients के बारे में. We are checking the soil quality. And there's a data given by the UNESCO by the 2050, 90% of the world soil is going to be degraded. 90% of the world soil is going to be degraded by 2050. So this is the data given here. 90% of the planet land surface could be degraded by 2050. This is by the data by the UNESCO. So how we can use this data? You can directly quote this data in the environment question or the geography question. If there is a question related to the geography in the main, specifically related to the soil degradation, आप यहाँ से introduction start कर सकते हैं. Even in your geography optional, you can use this line as an introduction in the soil degradation questions in the means examination. Even you can use this in the environment perspective. जब आप लिखोगे कि due to the change in the soil, what can be the other contextual issue related to the soil degradation, तो वहाँ पे इस data को use कर सकते हो. In the today's UPSC preparation, where you are going to use the content you are feeding with up, जो आप पढ़ रहे हैं उसको use कहाँ पे करोगे, that's become the more important task. Otherwise पता सबको है कि soil degradation क्या है. कोई definition से start करेगा, कोई type of soil से start करेगा, and the intelligent one will start from this data, because UNESCO soil and data and the content, that's become a best introduction for those kind of the questions. So the one news, the relevance with the means, the relevance with the soil health index की क्या क्या steps लिए जा रहे हैं international level पे related to the soil protection. The third relevance with the location in the news Morocco, that we are going to look here. So in this case here, Morocco
किस कॉन्टिनेंट में आता है? मोरक्को इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. गुड. And the country boundary in the Morocco, if we look at here, it's sharing the boundary with the Mediterranean Sea as well, and here also. ठीक है. So the Algeria, Mali, Mauritania and the Spain के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा water gap है. They are sharing the water boundary, not the land boundary here. So the country sharing the boundary with the Morocco, and this is the area of the Western Sahara. This is the area of the Western Sahara which is occupied by the Morocco. वो और मोरक्को ने ऑक्यूपाई किया हुआ है द एरिया ऑफ द वेस्टर्न सहारा. So we can see here the Mauritania, if we consider this as a part of the Morocco, then the Mauritania is also sharing the boundary with the Morocco, and here the Algeria is also sharing the boundary with the Morocco, but Mali is not sharing the boundary with the Morocco. तो ये चीजें आपको दिखना चाहिए कि they can be direct question, the country sharing the boundary with the Morocco, or which of the following country is not sharing the boundary with the Morocco. That kind of the question can be directly asked. Yes, Mali is not sharing. Yes, Ganesh. ठीक है. Next पे आते हैं. तो this was the one news because of the soil health index. इससे एक महीना पहले there was a earthquake of 6.8 hectare. That was a major earthquake in the Morocco. If you look at your 2022 prelims examination, उस time पे there was a earthquake in Syria and Turkey. And the few location from that earthquake region that was majorly impacted because of the earthquake was asked in the examination. Similarly, in this context, those locations that are majorly affected by the earthquake in Turkey also become an important area for you. So if we are looking at here, there are few locations you can note down. Agadir, you can note down the location Agadir. Essaouira, Chichoa and Taroda. These are the majorly 4 locations which are majorly affected by the earthquake in the Morocco. And the question can be simple. These 3 locations was recently mentioned in the news. These are related to the Libya floods, Morocco earthquakes, disputed region between the Azerbaijan and the Armenia, and the 4th option can be anyone. So direct question होगा from the locations that are in the news. और specifically आपको ये भी याद रखना है, specifically you also need to know UPSC question कहाँ से पूछता है. Major conflict regions like the Syria, Sudan, major area जहाँ पे war like condition है, Russia, Ukraine. Now the same condition in the Israel वाले area के आसपास वाली conditions में है. Major natural disasters जहाँ पे हुए हैं वहाँ से question पूछा गया है. Climate effect जहाँ पे हो रहा है, even they are asking about the drying up of the lake, even they are asking about the country bounding the sea. ये सारे क्वेश्चन, ये 5-6 एरिया ही है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ये भी होता है कितनी लोकेशन हमें पढ़ना है. You need to identify the context of the UPSC from where they are asking the question. There are 6-7 area, not more than that. उससे ज़्यादा वो नहीं पूछते हैं. तो आपको उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, उन्हीं क्लाइमेट चेंज के बारे में देखना होता है when you are reading the newspaper. But in the newspaper, sometimes these things are missing. वो बताएंगे कि बस मोरक्को में earthquake आया, 3000 डेथ, 4000 डेथ या 500 डेथ्स हुए. But these things are missing in the newspaper that you need to search on your own. So these are the 4 locations that you need to remember. The earthquake से क्या क्या location majorly affect हुआ मोरक्को में. Next location पे आते हैं लाइबेरिया. ये किस कॉन्टिनेंट में है? ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना आप सबका, तो किस कॉन्टिनेंट में है? हाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री बट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, इट्स इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. एंड स्पेसिफिकली देयर वाज अ रीजन व्हाई दिस इज द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द सीवियर फ्लड्स. सीवियर फ्लड्स होने की वजह से मेजरली ये न्यूज में है द लाइबेरिया. Because of the regions, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, सीनेट थे, they left the country and moved to the some another places because of the severe flood in this area. जिसकी वजह से लाइबेरिया in the news, but most of the area of this country is affected. अगर हम देखेंगे, this is the in the Atlantic Ocean, due to the sharing the boundary,
जैसे ही वाटर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता है, दैट्स लीड टू द फ्लडिंग इन दिस एरिया. अगर हम देखें, दीज आर द एरिया विच आर मेजरली अफेक्टेड. अब यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस हैं, सो देयर इज अ लेस चांसेस कि देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम दीज लोकेशंस. तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच वाज द हाईली अफेक्टेड एरिया इन द लीबिया. बट व्हाट्स बिकम द इंपॉर्टेंट, द शेयरिंग बाउंड्री कंट्री, the sharing boundary country with the Liberia become the important thing. तो आपको specifically identify करना है what is important for the examination and what is not. मोरक्को में ये locations हमारे लिए important था, but in the Liberia these boundary country are important for us. Yes Ganesh, yes, 2 only. Okay, so let's move to some of the next one. क्या issue था इसमें? And 28 flooding and 48,000 people are displaced from this area. 48,000 locations, people are displaced. And from the one of the newspaper like the BBC and there is a news of the Saudi Arabia, Al Jazeera. वहाँ पे ये specifically 3 places mention किए गए हैं in the Liberia which are the highly affected by the floods. Neither the Hindu covered nor the Indian Express covered, but the BBC and the Al Jazeera covered about these 3 places that are highly affected by the floods in the Liberia. So basically, directly question can be related to these locations. So इनसे directly हो सकता है, but these are not mentioned in the map. तो आप specifically इनको note down कर लें. If we are moving next, the Azerbaijan. Azerbaijan पहले भी न्यूज में था due to which conflicts? Nagorno-Karabakh and now the COP29. This is an important for your environment perspective. The Ajay sir is taking the environment current affairs class, I think, so he will discuss the COP29 there. But for us, Azerbaijan has become an important area. And the Climate Finance Action Fund recently passed हुआ है for the UN Climate Change Conference of COP29. COP meaning is Conference of Party 29. That is specifically dealing with the climate change. So we will look here, Armenia and Azerbaijan, and this is the Nagorno-Karabakh region, which is a disputed area between these 2 countries. And this was already asked in the year 2021 and 2023 in the UPSC prelims. Directly. This is a disputed territory between which of the following country? One question was that. The second question was in the pair. There were 3 locations were given. Out of those 3 locations, 1 location was the Nagorno-Karabakh region. तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फिर से पूछा जा सकता है. एंड यूपीएससी हैज ए हाई टेंडेंसी ऑफ रिपीटिशंस. ये भी आप लोगों को जानना होगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं. आई विल शो यू द 1, 2 और 2 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं डायरेक्टली. एंड एवरी ईयर यू कैन सी दैट द लोकेशंस जो पूछी गई है ना, वो एरिया सम ऑफ द फिक्स्ड एरिया जहाँ से पूछा जा रहा है. It's not like randomness in the asking the locations. So they are asking those questions that are in the news, but from a specific area से ही पूछा जाता है. Okay. Let's move to the next one. हाँ, there is a river is flowing through it. The river, Kura river. आप इसको लिख लीजिए. That's become important here. The Kura river. Nagorno-Karabakh region. Nagorno-Karabakh आप लिख लीजिए. Nagorno-Karabakh. This is a disputed region between the Azerbaijan and the Armenia. This is under the control of Azerbaijan, but the population of the Armenian population are living here. So that's why it's a disputed region. यहाँ पे religious जो context है वो अर्मेनिया का आ जाता है.
इसीलिए वो डिस्प्यूटेड है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से दिस इज इन द न्यूज हियर। नेक्स्ट पे आते हैं, पैराग्वे, इट्स द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? इंडिया एंड फ्रांस ने। इस पे आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। एंड नाउ द पैराग्वे हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट द 100th मेंबर। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 16। तो दिस इज द 9th ईयर। जब आप मेंस लिखेंगे तो 10th हो जाएगा, तो इट्स ऑल्सो अगेन बिकम एन इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। So in this case, if we're looking at the location of the Paraguay, it is sharing the boundary with the Argentina. It's sharing the boundary with the Brazil. It's sharing the boundary with the Bolivia. It's also yes, only the 3 countries sharing the boundary. There is a wetland here. बहुत बड़ा wetland है in Brazil. क्या नाम है? ज्योग्राफी पेपर 2 में लोकेशंस आते हैं ना 10। पंतनल वेटलैंड्स, ठीक है। तो दैट्स आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट एरिया। अगर हम देखते हैं, दिस इज द वेटलैंड in the Bolivia, also in the Paraguay, and the major part in the Brazil. It's a pantanal wetlands. There are some more few rivers in this area also. अगर हम देखते हैं तो there is a river name Paraguay river. The name of the country जो है, country का नाम से ही rivers हैं, Uruguay river, but that's a different name, Parana river. आप इसका नाम लिख लीजिए, that's a Parana river. Parana river, okay, Parana, Parana river. Let's move to the next location. So these are the 4-5 location था। इसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे। तो कौन बताएगा हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट लोकेशन में डिस्कस्ड, 10 ही मिनट हुए हैं यार। मोरक्को, मोरक्को में क्या डिस्कस किया है? सी योर नोट्स, देख के बोलो। सोइल डिस्कस किया है। सोइल हेल्थ कार्ड किसने, सोइल हेल्थ रिपोर्ट यूनेस्को ने रिलीज किया है। कहाँ पे? मोरक्को में। स्पेसिफिक प्लेस? हाँ, मोरक्को में अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या किया हमने डिस्कस? लीबिया में, लाइबेरिया में फ्लड्स इन द अफ्रीकन पार्ट्स, द कंट्री शेयरिंग द बाउंड्री विद द लाइबेरिया। ठीक है। एंड 3 प्लेसेस जहां जो मोस्टली अफेक्ट हुए फ्लड से? ठीक है। नेक्स्ट, COP29 क्लाइमेट फंड पास हुआ है। अजरबैजान में कन्फ्लिक्ट रीजन, नागोर्नो कराबाख रीजन। और क्या देखा हमने वहां पे? रिवर, कौन सा रिवर देखा? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या देखा? ठीक है। पैराग्वे ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इज द 100th मेंबर। पैराग्वे में क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए? पेंटेनल वेटलैंड इन द ब्राजील, बट पैराग्वे में भी तो कुछ होगा ना, कंट्री शेयरिंग द बाउंड्री विद पैराग्वे। ठीक है, फिर पूछूंगा 15 मिनट बाद, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द साइंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, द टॉपिक इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। गिवन हेडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। होता क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? बायोटेक्नोलॉजी सबने पढ़ लिया साइंस में? ठीक है, अभी पढ़ लेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो व्हाट आर द जीएम क्रॉप्स? ठीक है, गुड, ठीक है, यस, राइट।
So first of all, we look at the why this is in the news. Recently, there is a split verdict. What is the meaning of split verdict? Yes, there are two judges bench which gave a recently verdict on the mustard variety Dhara mustard and the DMH11. In the split verdict, one judge said that the central government has given the approval without looking at the stakeholders. So there should not be no cultivation of Dhara mustard at the local level. Dhara mustard का cultivation नहीं होना चाहिए local level पे. That's given by the one judge of the Supreme Court. The second judge say that if the central government उसको oversee कर सकता, if they can oversee the agriculture part of Dhara mustard, then they can give the approval for the Dhara mustard at a local level or at the production level. And the third thing, this is a judge 1, this is a judge 2. They are different in these things, but they are also common in the one thing. There should be a committee for it. And there should also the rules for it. किस क्रॉप को हम अप्रूवल देंगे, किस क्रॉप को अप्रूवल नहीं देंगे फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो इंडिया में कितने जीएम क्रॉप्स को अभी तक अप्रूवल मिला है? फूड क्रॉप्स में किसी को मिला है? नहीं, अभी तक इंडिया में फूड क्रॉप्स में देयर इज नो अप्रूवल फॉर द फूड क्रॉप्स. दिस वाज द फर्स्ट वन. अगर हम इसका हिस्ट्री देखते हैं स्पेसिफिकली, इन 2002 the BT cotton got the approval. In 2002 the BT cotton got the approval for their production on a larger scale. But in 2019 it's looked at, there is a effect of a bollworm known as the pink bollworm that affected this crop, and there is a further modification. In the BT cotton. The second crop which was approved for it in 2010, that was the BT brinjal. But due to the protest of the public, जो हर जगह आ जाती है, they taken back the decision. They are not allowing the growth of the BT brinjal. Then in 2021, central government approved for DMH11, धारा मस्टर्ड 11 के लिए अप्रूवल दिया गया. बट अगेन द केस वाज इन द कोर्ट एंड रिसेंटली द कोर्ट गेव द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट क्या मतलब? कोई सोल्यूशन नहीं दिया. एक ने बोला होना चाहिए, एक ने बोला नहीं होना चाहिए, एंड द केस इज देयर ओनली. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इफ वी आर रीडिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? तो आप वो लिख लीजिए. तो ये आप एक हैबिट बना लीजिए. व्हेन एवर यू आर रीडिंग एनी टॉपिक, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, दैट्स बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फर्स्ट, व्हाट इज द जीन मॉडिफिकेशन? Second, what is the restriction endonuclease enzyme? Third is the approval agency. In this case, Genetic Engineering Approval Committee. Side effect of GM crops. Number 5th, rules and regulations related to GM crops in India.
M crops in India. These are the few of the important area जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है. इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना होता, इवन फॉर द मेंस, इवन फॉर द प्रीलिम्स. मेंस में आप एक वे फॉरवर्ड यू कैन आल्सो गिव द सजेशंस एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, क्या हम कर सकते हैं. Restriction endonuclease enzyme is a genetic tool that help in the gene editing, जो gene editing में help करता है. लिख लिया. एंडोन्यूक्लियस, ENDONUCLEASC. बहुत गंदी हैंड राइटिंग आई नो, बट ठीक है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. GM crops in India. GM crops in India. With the Genetic Engineering Approval Committee, there are the 4-5 rules and regulation related to the GM crops in India that also you need to write in your answers. If the question in the GS2, this become must for you. If the question in the GS3, this become must for you. तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 1, 2 या 3 में पूछा गया है, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली अलग तरीके से आंसर होगा. If the question in the ethics, then the side effects, the ethical perspective of the genetically modified crops. So single topics can be asked in the GS1, 2, 3 or 4. GS1 can be the geographical perspective, second can be the rules and regulation related to the GM crops, third can be the environmental perspective, and fourth can be the ethical perspective of the GM crops. ठीक है. सबसे पहले let's look at the genetic modification. So what is the meaning of the genetic modification here? In the case of the genetic modification, if we are having these DNA strands, ठीक है, this is the DNA. DNA is a double stranded. Every crop, every human being cell is having the DNA. कोई भी है इस planet Earth पे except the single cellular, except the viruses. Few viruses also having the DNA. Everybody is having the DNA structure in it. If we want to modify DNA, if we want to launch a new variety of the crops, if we want to launch a genetic modified organism as well, we need to edit this gene. Means this is a basic unit. इसको edit करना होगा. When we are editing these genes, we are using a DNA that is known as the recombinant DNA. We are using a recombinant DNA. ठीक है. In this DNA, we cut a specific place. We cut a specific place. Through the tool we are cutting here, that tool is known as restriction endonuclease enzyme. That tool is known as restriction endonuclease enzyme. Molecular seizure भी बोला जाता है. We use the seizures everywhere to cut everything. So here in the DNA, if we want to cut the DNA, we are using the molecular seizure. That's the restriction endonuclease enzyme is the molecular seizure. And there is a new gene we are taken और lab में भी manufacture हुआ है. We take that part of the gene here and we will introduce at the place of this gene here. इसको हटाएंगे. We will remove this gene and we will add this gene at the place of this gene. Then we will enter this into the cell for the further modification and production, और बाय प्रोडक्ट को देखेंगे कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, डिजायर्ड है या नहीं है. If it is a desired product, then the modification is successful. If it's not a desired product, then it's not successful. Again experiment होगा and again production होगा. So this is the basic process. तो इसके लिए different kind of the restriction endonuclease यूज हो सकते हैं. CRISPR Cas का नाम सुना होगा आपने. CRISPR Cas9, that's also type of the restriction endonuclease enzyme. Endonuclease इसलिए बोलते हैं क्योंकि in between, it cutting in between the DNA. If it's cutting the end of the DNA, it is known as the exonuclease. Instead of endonuclease, it's known as the exonuclease enzyme. If it's cutting at the end of the DNA, then it's known as the
एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो धारा मस्टर्ड में भी किया गया है। नाउ GM mustard crops that's known as the DMH, Dhara Mustard Hybrid Crop 11, ठीक है। तो इन दिस केस धारा मस्टर्ड में एक वैरायटी होती है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेड होता है। जो पोलिनेशन होता है सेम प्लांट में पोलिनेशन होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स में सेम पोलिनेशन होता है। इफ देयर इज अ सेम प्लांट्स, plant A and the plant B, both are having the same variety and they are having the pollination. The gamete of the male went to the gamete of the female and there is a pollination, development of variety. Means we cannot change the gene here because the pollination is same, variety दोनों का same है, तो हम उसको edit कैसे करेंगे? तो इसके लिए first of all the scientist added the two kind of the gene into the mustard crop. One is the Barnes gene and second is the bar star gene. तो आप ये लिख लो, ये आपके लिए important है। Barnes gene and the bar star gene was introduced into the variety of the mustard for the genetic modification. बनारस से याद रख सकते हो, बनारस तो कोई भूलेगा नहीं। तो and the bar star is a 5 star is a bar star से आप याद रख सकते हो बनारस and the bar star. Okay, so these are the two genes that are introduced into the mustard crop specifically. Mustard crop में introduce करने के बाद after the Barnes and bar star gene, they started the genetic modification. Between the two plant variety. तो इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग वैरायटी होंगी। एनी आइडिया कौन कौन सा प्लांट वैरायटी था? ईस्टर्न यूरोपियन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ईस्टर्न यूरोपियन वैरायटी ऑफ मस्टर्ड एंड वरुणा वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। Varuna and the Eastern European, Varuna variety and the Eastern European variety of the mustards that are used for development of the GM mustard crop for the DMH11. किसने किया है ये स्पेसिफिकली? किस इंस्टीट्यूट ने किया? नहीं, DU ने ही किया है। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नाम लिख लो, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन। सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन has done develop the GM mustard variety. So there can be a direct statement the DMH11 variety has been developed by Indian Council of Agriculture Research पूसा। तो ये सरासर गलत है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ हम फ्लो में बह जाते हैं। ICR तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर रिसर्च करता है, हर चीज़ इन्होंने बनाई है, बायोडिकम्पोजर भी इन्होंने ही बनाया, तो आई थिंक ये भी इसने ही बनाया होगा। लेकिन वी शुड रिमेंबर इफ देयर इज सम एक्सेप्शन रिलेटेड टू इट, कभी कभी ही होता है कोई इंस्टीट्यूट अलग से बना लेता है, अदरवाइज इन द केस ऑफ द ICAR के इंस्टीट्यूट्स ही हैं जहाँ पे मोस्टली डेवलप होता है, ठीक है। तो दिस इज द GM मस्टर्ड क्रॉप में क्या क्या वेराइटी यूज हुई हैं और किसने डेवलप किया है। वरुणा वेराइटी एंड द ईस्टर्न यूरोपियन वेराइटी, इट्स अ पोलिनेशन बिटवीन दीज टू वेराइटी आफ्टर द एडिशन ऑफ दीज टू जीन्स, बारनास एंड बार्नस्टार। इन जीन के और भी बेनिफिट्स हैं, लाइक आप देखते हो वी आर यूजिंग द वीडीसाइड्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फार्मर फैमिली से है कोई यहाँ पे, ठीक है। अगर आप खेतों में जाके देखोगे तो वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द हर्बिसाइड्स एंड वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ वीडीसाइड्स। प्लांट के साइड में बहुत छोटे छोटे काइंड ऑफ द छोटे छोटे पौधे निकलने आते हैं, इनको हिंदी में तो बोलते हैं खरपतवार, इंग्लिश में बोलते हैं वीडीसाइड्स एंड द हर्ब्स एंड द वीड्स। तो उन वीड्स और हर्ब्स को किल करने के लिए वी आर यूजिंग द वीडीसाइड्स एंड द हर्बिसाइड्स। अदरवाइज जो प्लांट का न्यूट्रिशन है सारा दीज वीड्स एंड हर्ब्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ दीज जीन्स, these plants, these variety become the
हर्ब रेजिस्टेंट वेराइटी, तो मीन्स यहाँ पे अब हर्बिसाइड्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा अपने आप ही. Like in the case of the Bt cotton, it's control the bacillus thuringiensis that affect the Bt cotton. तो उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि बीटी उस पर अफेक्ट ही नहीं कर पाए. सिमिलरली इन द केस ऑफ द मस्टर्ड वेराइटी, these two genes introduced into the mustard variety, so that it's become a herbicide property इसके अंदर खुद से ही आ गई है. Now in this case these are the two genes जो हमने बात करी, barnas and the bar stars are the two genes which are used for the cross pollinations in the mustard variety. So we took the two plant variety, one is the eastern European and one is the Varuna. After the cross pollination we get the first generation, F1 is the first generation variety of the mustard 11 and that is the DMH11 variety of the mustard. तो आपके लिए जीन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैरायटी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बनाया किसने है. दे थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ऑल्सो हैविंग द हर्बिसाइड प्रॉपर्टी, दैट्स ऑन ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. क्वेश्चन आएगा इस पे, तब मैं देखूं कौन कितना अटेंशन में. देयर आर 4 क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं. फ्रॉम 2015 टू 2024 4 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. नाउ लेट्स कम टू द बेनिफिट्स. भी हमने बना लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम यूज किया, नया वैरायटी ऑफ क्रॉप आ गया. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट्स न्यू वैरायटी क्रॉप्स? द फर्स्ट एडवांटेज, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन. इंक्रीज प्रोडक्शन टू वे में, वन इज द वैरायटी सुपीरियर देन द इनिशियल वैरायटी. सेकंड, इट्स आल्सो हैविंग द हर्बिसिडाल प्रॉपर्टी, ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा जो बाकी ग्रोथ नहीं हो पा रहा था ड्यू टू द वीडिसाइड्स एंड द हर्बिसाइड्स. नाउ दिस वैरायटी हैविंग द high yield per acre, like the BT cotton देखोगे तो BT cotton is now contribute the 95% cotton of the India. अगर 100 kg cotton पैदा होता है उसमें 95 kg BT cotton है इंडिया में. तो enhance yield production, reduce the cost for the food. If the variety is superior and the production is very higher, then the price will decrease. कोई ज्यादा क्वांटिटी में पैदा हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आने शुरू हो जाते हैं. रिड्यूस द यूसेज ऑफ द एनवायरमेंटली डैमेजिंग पेस्टिसाइड्स, लाइक हमने बात करी हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट एंड द हर्ब रेजिस्टेंट वैरायटी. न्यूट्रिशनल वैल्यू, वी कैन एनहेंस द न्यूट्रिशन थ्रू दिस क्रॉप. इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द अल्टरेशन करके वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू. क्या बोलते हैं उसको? बायोफोर्टिफिकेशन. तो बायोफोर्टिफिकेशन 3 तरीके से हो सकता है. द वन काइंड ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन थ्रू द एडिटिंग ऑफ द जीन. सेकंड काइंड ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन इज आफ्टर द प्रोडक्शन. थर्ड काइंड ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन इन योर फूड, एक शस्य के फॉर्म में आते हैं न्यूट्रिएंट, आप अपने खाने पे डालो एज अ सॉल्ट एंड दैट योर फूड इज फोर्टिफाइड. सो दे कैन बी द 3 काइंड ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन. So these are the benefits of the genetically modified crops in the agriculture. Next आते हैं, this is the very important genetic engineering approval committee. This is the committee in the country which gives the approval for the production of the genetically modified crops. कोई crop develop हो गया है उसको हमें प्रोडक्शन में लेके आना. So this is the committee with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Department of the Biotechnology के साथ मिलके they give the approval for the production of that crop. So DMH11, धारा मस्टर्ड 11, इस कमेटी ने अप्रूव कर दिया था for the production, but there is a stay from the court side कि you cannot produce until and there is a complete clearance from the public side as well, all the stakeholder की side से भी हो जाए. So this was started in the 1989 under the Environmental Protection Act of 1986. Under the Environment Protection Act of 1986. Sometimes they ask a question related to it and they will give the Genetic Engineering Committee is established under which of the following act? A, B, C, D. उनमें से एक ऑप्शन ये भी है, Environment Protection Act 1986. It comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. We confuse with the Ministry of Science and Technology क्योंकि टॉपिक तो साइंस एंड टेक का है, तो एनवायरमेंट में कहाँ से आ गया?
सेकेंड, वी कंफ्यूज विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि दे कैन वर्क अंडर द, क्योंकि जीन एडिटिंग हो रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आएगा, बट इट्स वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Its chairman is the additional secretary of the Ministry of Environment and the co-chairman is the Department of Biotechnology. Now, what's the responsibility? Its responsibility to monitor the genetically engineered crop. को monitor करना है, इसके साथ साथ large scale use of hazardous microorganism ना हो in the crops. That's also the work of genetically modified, genetically engineering appraisal committee. तो आप मुझे बताइए, if I want to import and genetically modified products from the USA in India, मुझे किसका अप्रूवल लेना होगा? हाँ, वही मैंने पूछा है. इफ आई वांट टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम द यूएसए, लेना भी पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? कहाँ से? वो तो बेचने को तैयार है क्योंकि हमारे बहुत सारी वैरायटी अलाउड है. इंडिया में कौन कंट्रोल करता है डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स? फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI. So we need an approval of the FSSAI to import any genetically modified product from outside the country. तो हमें FSSAI का अप्रूवल लेना होगा. So this is also the important. FSSAI approval is required. नेक्स्ट पे आते हैं. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाले के अंडर आए. इसके साथ साथ दिस इज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट वर्क स्पेसिफिक. ट्रांस फैट में हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मैंने बिना पढ़ाए नहीं पूछा. ट्रांस फैट में हमने इस अथॉरिटी की बात करी थी, दैट लुकिंग एट द परसेंटेज ऑफ द ट्रांस फैट इन द चिप्स पैकेट्स, इन द कुरकुरे पैकेट्स, इन द बर्गर, इन द पिज्जा. तो यही अथॉरिटी देखती है. तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि स्पेसिफिकली कौन देखता है. नेक्स्ट पे आते हैं. नाउ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्सेप्ट द जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के अलावा भी कौन है? द फर्स्ट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. FSSAI की बात कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली दिस अथॉरिटी approval is required for the import. लिख लो. The approval of FSSAI is required for the import, manufacture, and sale of genetically modified food and sale of जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. इन तीनों के लिए हमें FSSAI का अप्रूवल चाहिए. नेक्स्ट, द रिव्यू कमेटी ऑन द जेनेटिक मैनिपुलेशन, इट्स कम्स अंडर द GEAC, जो रिव्यू करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में सारा देखेगी. तो इसमें स्पेसिफिकली सारे R&D प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी रहेंगे रिलेटेड टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन द कंट्री, दे आर लुक्स अंडर द review committee on the genetic manipulation. Third is the state biotechnology coordination committee. Every state is having a state biotechnology coordination committee as well as a district biotechnology coordination committee, जिसके थ्रू लोअर लेवल टू हायर लेवल सारे जितने भी इंस्टीट्यूट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का काम चल रहा है वो सारे कोऑर्डिनेट होते हैं थ्रू द स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी. देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के अंदर होता है. एंड द GM अप्रूवल प्रोसेस, GM अप्रूवल प्रोसेस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. दैट्स विल गो थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एंड द फाइनल द अप्रूवल विल बी गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स थ्रू द GEAC. So this is the final authority who will provide the approval for the genetic engineering products. So these you can directly write in your mains answer. If there is a rules and regulation related to the genetically modified crops आता है तो आप ये 5 के 5 या 6 के 6 डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने आंसर्स में. उस टाइम तो बस हमें यही याद आता है यार, यही था एक, बाकी 5 भी हैं. तो वी नीड टू बी लुक एट दोज क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. कंसर्न अबाउट द GM क्रॉप. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बताएं.
ये आप खुद से सोचेंगे. What can be the problems? Yes, that's the good point. First point is the development of resistance. You can write the examples of the GM modified crops like the BT cotton. BT cotton against the pink bollworm. तो इनइफेक्टिव हो गया था इन द एरिया ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा इन 2019. आफ्टर के बाद दोबारा से मॉडिफिकेशन रिक्वायर हुआ. सेकंड कैन बी यस health issues. The major concern of the genetically modified crops in the Canada and the US. In the Canada and the US, there are some of the carcinogenic activity as well as the stomach related issue has been observed related to the genetically modified crops. Health issue भी हुआ. Third, और क्या हो सकता है? फर्टिलाइजर रिक्वायर नहीं है. हाँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से. तो कम होगा. यस, दैट्स जो मैं सीख कर रहा था, पोलिनेशन. इफ देयर इज एन मस्टर्ड प्लांट, बहुत गंदी ड्राइंग है, ये प्लांट है हमारा मस्टर्ड. यहाँ पे हमारे पास वीट प्लांट है जो नॉर्मल प्लांट है, ठीक है. पोलिनेशन हो रहा है. नाउ दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, दिस इज अ नॉर्मल क्रॉप. दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द वीट क्रॉप हियर. इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द बटरफ्लाई ऑल्सो, जो इसको कैरी करेंगे. तो इट्स हैविंग अ ह्यूज पोलिनेशन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. इसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स वैसे ही एलर्जिक होते हैं. विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पोलन ग्रेन्स होंगे और ज़्यादा एलर्जिक होने के चांस रहते हैं विद द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. समटाइम दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नॉट डाइजेस्टेबल विद द फ्यू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो क्रॉप्स बना, मान लो इफ वी आर अलाइंग द बीटी ब्रिंजल, some people will not be able to digest it because of the genetically modification of the crop. Their human system is not allowing to digest them. So that can be the health concern in the longer run. So these can be the concern related to the genetically modified crop. That's why इतना बड़ा approval चाहिए होता है for the new variety. That's why India is only having the one variety, that's a BT cotton till now. But we are struggling for the GM mustard because this is an oil variety. If the government is allowing the approval, तो there is an increase in the production of the mustard oil. Mustard oil भी उस तरीके का प्रोड्यूस होगा जो लेस स्मेल होगा. If लोग नॉर्मली हम मस्टर्ड ऑयल को देखते हैं, इससे पंजेंट स्मेल होता है. बट इन दिस वेराइटी देयर इज अ वेरी लेस पंजेंट स्मेल. वो जीन भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर कि जो पंजेंट स्मेल, जो रिफाइंड ऑयल में जो स्मेल है वो आता नहीं है बिल्कुल भी. बट द मस्टर्ड ऑयल इज हैविंग ए हाई स्मेल. So that smell is also reduced in DMHE level through the introduction of new genes. If there is a production is allowed in the future, that can be the game changer for the oil, because India is dependent on the oil. किस कंट्री पे डिपेंडेंट है? ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा यार मैं. साउथ ईस्ट एशिया कंट्री पे डिपेंडेंट है फॉर द पाम ऑयल. So that can be a replacement of the palm oil also because of the cheaper production की वजह से. It can also be the replacement of the palm oil. So that can be the way forward for your answer. जो humans को आएगी वो animals को भी आएगी. हाँ, pollinations होता है means the genetics, जो gametes they are transferred from the one plant to the another plant. When butterfly is taking those pollen grains or that genetic part from the one plant to the another plant, one crop is the modified one, second is the not modified one. एक गैमेट मॉडिफाइड है, एक नॉन मॉडिफाइड है. सो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. अगर पोलिनेशन अच्छे से नहीं होगा तो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा एंड ऑल्सो कैन डैमेज द क्रॉप एज वेल.
और जो पोलिनेटर है, जो एजेंसी है, मीन्स द बटरफ्लाईज एजेंसी है, वो भी इम्पैक्ट होगा क्योंकि इट्स ऑल्सो इफेक्ट द बटरफ्लाई पॉपुलेशन एज वेल। दिस लुक्ड इनटू द यूएसए में देखा गया था, जब वहाँ पे एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस एरिया की सारी बटरफ्लाई मर गई थी। दैट ऑल्सो लुक्ड इनटू द यूएसए स्पेसिफिकली, ट्रायल फेजेस में देखा गया था। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चंस, so try to answer this question. Consider the following statements regarding the Genetic Engineering Approval Committee. Is a statutory body constituted under the Environment Protection Act of 1986. It functions under the Ministry of Science and Technology. Its responsibility is to appraise proposal related to release. Huh? Yes, answer is B here. It's under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So answer will be here 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी में पूछा गया था। सी, ठीक है, इट्स कम्स अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो रॉकेट साइंस तो नहीं पूछा है, सिंपल ही पूछा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी ऑफ 2023। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर आप दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। It's a more related to the genetically modification rather than the GM crop. कितने लोग डी कह रहे हैं? बाकी लोग? एक फैक्ट बताता हूँ, सब लोग आंसर देंगे। एक फैक्ट बताता हूँ, यूपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 100 में से 35 से ज़्यादा हमें नहीं आते, ये भी फैक्ट है। बाकी 65 भी करने होते हैं, नहीं तो पास नहीं होगा। ये करके भी बैठे तो 70 आएगा, कट ऑफ हमेशा 90 है। 65 क्वेश्चन विदाउट इंफॉर्मेशन और विद मिनिमल इंफॉर्मेशन आंसर करने हैं। तो अभी करो, अभी प्रैक्टिस करोगे तभी वहां पे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, वन मोर थिंग, किसी भी स्टेटमेंट को नेगेट या सही कर रहे हो, ये गलत सही नहीं है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, तो देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट, क्यों गलत किया, क्यों सही किया। जय माता दी वाला नहीं यार, ये तो गलत ही होगा, इंट्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। क्यों नहीं कर सकते? फीमेल एग एंड मेल स्पर्म सेल में क्यों मॉडिफाई नहीं कर सकते? डीएनए ही तो है, डीएनए मॉडिफाई हो सकता है ना, कैन बी। अगर अभी भी नहीं होता तो फ्यूचर में तो हो ही जाएगा। तो स्टेटमेंट इज राइट। नाउ कम टू ऑप्शन। फर्स्ट सही है, मुझे पता लग गया फर्स्ट इन दोनों में नहीं है, एलिमिनेट। मेरा 75% हाई चांसेस कि माय क्वेश्चन विल बी राइट। सेकंड पढ़ते हैं। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। यस, इट कैन ऑल्सो बी डन इन द केस ऑफ जब एम्ब्रियो डैमेज होता है, उस केस में हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट। ये मुझे पता है या नहीं है, तो आई एम रीच टू द आंसर 1, 2 and 3। बेसिक इंफॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 80 आपको आते होंगे और 12th क्लास तक चला गया। 100 में से 35 मैक्स टॉपर्स जो फर्स्ट सेकंड रैंक उनको आते होते हैं, बाकी इन द रेंज ऑफ 30 घूमते हैं कि 30 शॉर्ट है, बाकी 40 और निकालने हैं, 45 और निकालने हैं। With less information or without information, how we can solve the question, that also the game here. Next पे आते हैं. This can be the main question. Examine the benefits and the challenges of the cultivating genetically modified crops in India. लिख लो next class में आने से पहले, write this question, or you can also send me on a telegram. टेलीग्राम पे आप मुझे मेरे नंबर से ढूंढ सकते हैं। प्लीज डू नॉट व्हाट्सएप एनी आंसर, आप टेलीग्राम पे ही भेजना, so I can easily evaluate your answers. फोन नंबर से नहीं मिल रहा तो विद द नेम यू कैन ऑल्सो सर्च।
नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. एग्जामिन द बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया, एंड द challenges we also discuss the challenges here of the GM crops. The first part we already discussed in our discussion. Second, discuss the effectiveness of the current regulatory framework. ये भी हमने किया. Now you are having the content. Content आपके पास है. Now you need to arrange the content according to the demand of the question. सबसे पहला इशू होता है कि हम कैसे लिखें, हमें आता नहीं है, हमारे पास कंटेंट नहीं है. वो तो दे दिया मैंने, अब समझ भी आ गया. आंसर लिख के सब लोग दिखाएंगे, सेंड मी ऑन द टेलीग्राम, तो वी कैन सी हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द कंटेंट. इसका पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगा, उसमें डिटेल्ड कंटेंट है, आप उसको पढ़ के आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इज द ग्रीन हाइड्रोजन. गिव एन हेडिंग ग्रीन हाइड्रोजन. क्वेश्चन नोट कर लिया है सबने? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो आपको इस मीनिंग का वर्ड समझना पड़ेगा. एग्जामिन. एग्जामिन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों आप लिखोगे हर एक उसमें. सबसे पहले जब क्वेश्चन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के स्टार्ट करके फर्स्ट पार्ट विल बी द बेनिफिट, सेकेंड पार्ट विल बी द चैलेंजेस, एंड थर्ड पार्ट विल बी द इफेक्टिवनेस. ऐसा नहीं कि पहले इफेक्टिवनेस लिख दिया फिर चैलेंज फिर बेनिफिट्स. अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट द आंसर्स. सीक्वेंशियली लिखना होगा. एंड द वर्ड लिमिट शुड बी 250, नॉट मोर देन डेट. कहीं आप 4 पेज लिख के भेज रहे हो, सर ये हो गया. 250 मीन्स 1.5 पेज मैक्स. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. गिव नेक्स्ट हेडिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज स्टार्टेड इन 2023. जैसे ही मिशन स्टार्ट हुआ, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया इन प्रीलिम्स एंड द मेंस. In that year, there was a question in the prelims as well as the mains as well from the National Green Hydrogen Mission. So in the case of the National Green Hydrogen Mission, the government is almost planning that 20,000 crores spending on the National Green Hydrogen production. Why this is recently in the news? Because the government is providing the subsidy for the private players to produce the green hydrogens. So almost they are giving the 70% of the plant cost. जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 70% गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है. प्लीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन. दिस इज द कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ टाई अप करके हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन्स. तो सबसे पहले व्हाट इज द ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? ग्रीन को ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी. कलर से तो कोई लेना देना नहीं. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस दिस थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द नेम ग्रीन हाइड्रोजन. स्पेसिफिकली जो इसमें इक्वेशन होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, the breaking down of the water molecules into the hydrogen and oxygen, and this hydrogen production is known as the green hydrogen. This can be produced through the two methods. One can be the electrolysis and second can be through the biomass. These can be the two methods for the production of the green hydrogen. If we are talking about the green hydrogen के बारे में, तो इसमें basically few projects अभी करंट में चल रहे हैं. In the case of the Noida, in the case of Ladakh, in the case of Gujarat and Indore. In the Gujarat and Indore, the specifically agencies are mixing almost the 8% of the green hydrogen into the PNG, piped natural gas, जो आपके घर में आता है PNG, उसमें उसको 8% तक मिक्स किया जा रहा है, so that the cost of the
other kind of the gases can be decreased, and the usage of the green hydrogen can be increased, because we are dependent on the petroleum products for the other country. लेकिन green hydrogen तो अपना ही है, so that will reduce the import cost of the country. In the case of the Indore also, there is other company which is also mixing this green hydrogen into the PNG. In the case of the Noida, there is a green hydrogen buses, and in the case of Ladakh also, it started the green hydrogen buses. Means on a trial phase. Even some of the car manufacturer also start manufacturing the green hydrogen cars. The first leaders is the Toyota. They start came in a trial phase also. The green hydrogen के through we can run the vehicle or not. जैसे ही vehicle की बात हुई तो यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया related to the hydrogen operated vehicles or the electric vehicles. दोनों का जो specifically रहेगा कि क्या waste product होता है. What can be the waste product in the case of the electric vehicles? ठीक है, दूसरे तरीके से पूछता हूँ. पॉल्यूशन नॉर्मल व्हीकल रिलीज करते हैं, उस पॉल्यूशन की जगह ये व्हीकल क्या रिलीज करेंगे? कुछ तो करेंगे ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कार्बन कैसे करेंगे जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं? यस, वही एग्जैक्टली आंसर है, वाटर वेपर रिलीज करेंगे. यही क्वेश्चन था यूपीएससी का 2024 में. इलेक्ट्रिक में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक में भी स्पेसिफिकली जो सेल्स हैं लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से दैट्स मॉइस्चर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स, तो वाटर वेपर्स ही प्रोड्यूस होगा. तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस कर देंगे. दिस वाज द क्वेश्चन इन 2024, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the exhaust pipe emission from the fuel cell electric vehicles powered by hydrogen. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगा, हाइड्रोनियम नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वाटर वेपर. तो दिस इज नॉट ऑल्सो कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज ऑल्सो द सिंपल क्वेश्चन दे आस्क्ड. बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे. तो व्हाट इज द ग्रीन हाइड्रोजन वी डिस्कस हियर. नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ द हाइड्रोजन. देयर आर द वेरियस काइंड ऑफ द हाइड्रोजन्स. द वन इज द ब्लैक हाइड्रोजन, because that depend on the process, through which process that's going through. We are getting the black hydrogen through the coal gasification. Coal color is black, that's why we are getting the black or brown hydrogen. That's the name of the process. Iske through we are getting the black hydrogen, and the major source is coal. Gray hydrogen, that is through the natural gas, because if you see the liquid petroleums products, that's lightest grayish in color, जब रो मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, तो दैट्स व्हाई द ग्रे कलर, द ग्रे हाइड्रोजन कलर, एंड द नेचुरल गैस, दैट्स अ मीथेन रिफॉर्मेशन. देन द ब्लू हाइड्रोजन, मीथेन और कोल गैसिफिकेशन एंड फॉसिल फ्यूल से जो प्रोड्यूस होगा, दैट्स अ ब्लू हाइड्रोजन्स. एंड बाकी पिंक छोड़ सकते हैं आप. ग्रीन हाइड्रोजन यू कैन फोकस ऑन. किसका? CCUS कार्बन से रिलेटेड कुछ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी, वो मैं आपको बता दूँ देख के एग्जैक्टली है क्या, ये आइडिया नहीं है अभी. CCUS नहीं पता, ठीक है. and the produced through the fossil fuels. So these are type of hydrogen. हमारे लिए important यही है अभी, क्योंकि the government launched the national hydrogen mission specifically and we are focusing on it. ये कभी चांस नहीं है कि पूछे जाएंगे until and unless किसी एग्जामिनर को बहुत प्यार नहीं है with the hydrogens. तो this is not of the use, but these are the type of the hydrogens that can be. ओके, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज लिख लो फिर. कार्बन कैप्चर, हाँ ये CCUS, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. दीज आर द टाइप ऑफ हाइड्रोजन. नाउ लेट्स कम टू द, ये लिख लिया कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज. नाउ एक्सपेक्टेड मिशन में क्या है, वी आर हैविंग ए टारगेट, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन हमें करना है. 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर.
रिन्यूएबल एनर्जी वी आर हैविंग ए टारगेट ऑफ द 125 गीगावाट, जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं. टारगेट ईयर वाज 2025 इनिशियली, नाउ द 2030. एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग 8 लाख करोड़ इन दिस मिशन. 6 लाख जॉब्स जो हमेशा किसी भी मिशन के साथ जोड़ दिए जाते हैं. एंड द 50 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम इज द CO2 प्रोडक्शन कम हो जाएगा if we are producing that amount of the hydrogen. There is a government data in the economic survey of 2024, 55% of the Indian youth are not employable. Graduate, जिनमें हम भी आते हैं. ठीक है, तो ये किसका लेक्यून है? पढ़ाया आपने, 10th आपने कराई, 12th आपने कराई, डिग्री आपने दी, उसके बाद आप बोल दे रहे हो कि आप एम्प्लॉयबल नहीं हो. तो फिर वाई वी आर रनिंग द कॉलेज एंड द स्कूल्स इफ वी आर नॉट एम्प्लॉयबल? तो किसका इशू है ये? गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशंस का. IAS IPS सर्विस बनाने से पहले क्या होना चाहिए था? इंडियन टीचर सर्विसेज, ताकि पढ़ाने वाले अच्छे हों तो पढ़ने वाले भी अच्छे बनेंगे, स्किल्स अच्छे आएंगे तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी. हम रिजर्वेशन के लिए रोड पे बैठ जाते हैं, वही है ना, रिलीजन के लिए रोड पे बैठ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के लिए रोड पे बैठ जाएंगे, SC ST OBC रिजर्वेशंस के लिए हम रोड पे बैठ जाएंगे. गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर हमारी बुराई करके अपनी अच्छाई बताने के लिए कि 55% यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, हम रोड्स पे नहीं है. पढ़ाया भी तो आपने, तो जॉब कौन देगा? So that's the kind of the generation we are. हमारा फोकस मेन कोर एरिया पे नहीं है. We are focused on the different things. We are the reels generation बोला जाता है. हम रील जनरेशन है, हर एक मिनट में हम भूल जाते हैं क्या चल रहा है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं. ठीक है, तो ये सोचने का आपके लिए भी है. आपके भाई बहन छोटे होंगे आपसे, तो उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट एरिया. नाउ इन द IITs ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 4 लाख पैकेज, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हर जगह देती घूमती है. TCS 3.6 lakhs per annum, आज भी वही है, 6 साल पहले भी वही था. So that's a kind of the employment rate in the country, कि how the country is going through a way कि जहाँ पे employment generation नहीं है, and we are saying we are going to become the third largest economy in the world in the few years. क्योंकि वो by nature बनेंगे. population 150 करोड़ है, तो कैसे नहीं बनेंगे? कंजम्पशन उतना ऑटोमेटिक बढ़ रहा है. आपने क्या किया है? कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा. वो भी नहीं बढ़ रहा बिकॉज वी आर द इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन द सम ऑफ द थिंग्स. अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट देखोगे, इट्स 1%, 1.2%. डज इट्स अ साइन ऑफ अ गुड इकोनॉमी? सर्विस पे भी अभी ठीक है, बहुत इजी लॉजिक है. सबके पास क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आते हैं, बैंक लोन के लिए फोन आते हैं. क्यों आते हैं? कभी सोचा है? क्यों मुझे लोन दे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली? सुबह से शाम तक 10 फोन आ जाएंगे, आप लोन ले लो. क्यों गाड़ी 20 लाख की गाड़ी, क्यों 50,000 रुपए दे के आप 20 लाख की गाड़ी उठा सकते हो कहीं से भी? क्यों आप टेलीविजन अगर 80-90 हजार का 5,000 रुपए दे के खरीद सकते हो? क्यों आप एप्पल आईफोन 3,000 रुपए दे के 1 लाख रुपए खरीद सकते हो? डू यू थिंक वाई दे आर डूइंग इट? वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना चाह रहे हैं कि आप लोन लो, खरीदो. क्योंकि इतना आपने बनाया नहीं ना कि बंदा अपने आप खुद से खरीद सके. आपने खुद ही बोल दिया ना 55% एम्प्लॉयबल नहीं है, मीन उनके पास पैसा भी नहीं है, तो खरीदेंगे कहाँ से? तो हम आपको लोन देंगे, आप खरीदोगे, फिर आप लोन वापस करोगे. लोन वापस कहाँ से करेंगे? नौकरी है ही नहीं. तो दिस इज अ साइकिल वी आर गोइंग थ्रू. तो इसीलिए कॉल सेंटर बढ़ते जा रहे हैं लोन देने के लिए, और लोन लेने वाले कम हैं. तो दैट्स वाई दे आर फीडिंग की सब किसी चीज़ में EMI दे दो, हर चीज़ में EMI. द रीजन अगर आप देखोगे तो 2005 से पहले क्यों नहीं था? 2005 2006, आई एम नॉट द फॉन्ड ऑफ कांग्रेस ऑल्सो, कहीं आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करो. 2005 2004 से पहले ऐसा क्यों नहीं था? कितने फ़ोन क्यों नहीं आते थे? इतना लोन्स क्यों नहीं मिलता था? सारी चीज़ें क्यों नहीं होती थी? 1991 में इकॉनमी ओपन हुआ, द फर्स्ट जनरेशनल चेंज है. लेकिन एट द टाइम द इशू वाज 2004-2005 पे
जो कंट्री का मेजर फोकस है, दे आर फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, दे आर फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, दे आर फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एज वेल, वो अभी भी है, लेकिन द पेस इज वेरी स्लो. They are not focusing on the basic components of the industry that's required for the production and the required for the consumption. Demand based economy जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं है. We are a consumer consumption based economy. क्यों Amazon, Flipkart, Walmart सब इंडिया में आने चाह रहे हैं? कंजप्शन की वजह से है बस, बाकी और कुछ नहीं है कि रहना उनको अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है. They just want to mint money from the consumers because we are a consumption based economy and we are not having the enough resources. आप जिस भी होम टाउन से आते हैं तो आप वहां पे एक बार नजर घुमाओ बैठे बैठे कि कितने लोग ऐसे होंगे जो 1.5-2 लाख कमा रहे होंगे महीने के. आउट ऑफ द 30,000, ये भी गवर्नमेंट का डेटा बता देता हूँ, 1 लाख लोग में से एक ही लोग है जो 50,000 से ऊपर कमाता है. आउट ऑफ द 1 lakh people, only the 1% that's earning the 50,000 and above. Out of the 10 lakh people, only the 3% of the people who are earning 20,000 and above. ये गवर्नमेंट का ही डेटा है. तो थिंक, अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे. ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं. तो चैलेंजेस क्या होंगे, व्हाट इज द मेजर चैलेंज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, व्हाट कैन बी द चैलेंजेस. द फर्स्ट चैलेंज ऑलवेज इज द मनी, जिसके बारे में बात कर रहे थे. इकोनॉमिक वायबिलिटी, हमने मिशन लॉन्च तो किया, how it can be the economic viable. The production cost of the 1 kilogram of the green hydrogen is almost $4 to $7. Production cost of the 1 liter of the green hydrogen is $4 to the $7, means almost 300 to 450 rupee vary करता है. So this is a huge cost we are bearing for the production of the green hydrogen. So first of all, we need to reduce the cost through the technology development. Technology developments के through we need to decrease the cost of the production of the green hydrogen. Second is the, and this is the data of the Niti Aayog. Not, हाँ, that's a major reason. वही हम बात करेंगे कहाँ पे होगा. फर्स्ट इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, और यूएस ने शेल गैस प्रोडक्शन किया था, इसलिए वो शिफ्ट हो गया कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज है. ठीक है. सेकेंड इज द डिफिकल्ट इन द हाइड्रोजन स्टोरेज. हाइड्रोजन को लिक्विड रखने के लिए देयर इज अ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन इज -247 डिग्री. जो हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -247 डिग्री है. अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो स्टोरेज काम ही नहीं करेगा ना, वो बॉयल होकर फट जाएगा. तो मींस यहाँ पे कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी चाहिएगी. क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी को? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. दिस कॉस्ट ऑफ द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन पे बेस्ड है. उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे रखने के लिए भी ज़्यादा पैसा लगेगा. एंड द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन इज वेरी हाई. तो जिस कंटेनर में उसको हम स्टोर करेंगे, द सिलेंडर में जिसमें स्टोर करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. तो दिस इज द डिफिकल्टी इन द स्टोरेज ऑफ द हाइड्रोजन. द बॉइलिंग पॉइंट इज very low, -247 डिग्री सेल्सियस. द प्रेशर इज वेरी हाई एंड द स्टोरेज कंटेनर को स्टोर में हम ज़्यादा चाहिएगा. लैक ऑफ स्किल, तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट ही है 55% का तो है ही नहीं. ठीक है. तो lack of skills meaning we are not having those kind of the scientists or those kind of the engineers that can work on the technology specifically for the development of the new technology, development of reduction of the cost related to the hydrogen, production of the containers जिसमें हम हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे. तो उनके लिए हमारे पास स्किल नहीं है. रिसोर्स स्कैर्सिटी, द गवर्नमेंट इज अलाउइंग द मनी, गवर्नमेंट इज पंपिंग मनी. मनी इज नॉट ओनली द सोर्स. पैसा होता तो बहुत कुछ हो जाता. टेररिस्ट के पास पैसा तो होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते. रिसोर्स स्कैर्सिटी, द पंपिंग मनी इज नॉट एन ए सॉल्यूशन. वी नीड द टेक सॉल्यूशन. टेक इज अ रिसोर्स हियर. वी नीड द सपोर्ट ऑफ द कंट्री जिन्होंने इसको क्रैक किया है. वी नीड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ये हमारे पास, वी नीड अ स्किल्ड लेबर. These are the resource issue with related to the green hydrogen.
लैक ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन द कार्बन इंटेंसिटी एंड द सेफ्टी, एंड दिस इज द ग्लोबल टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं वो पुराने हो चुके हैं। जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, इवन डिफेंस की बात करें, राफेल हमारे पास 2015 में आया, ठीक है। फ्रांस उससे 20 साल पहले उसको यूज कर चुका है, ठीक है। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे पास आते हैं ऑलरेडी 10, 15, 20 ईयर्स पुराने हैं। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, जनरेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिसमें राफेल का ऑप्शन था, एक हेलीकॉप्टर का ऑप्शन था, तो उसमें 4th जनरेशन कोई भी नहीं था, ठीक है। स्पेसिफिकली तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग जनरेशन क्या है तो आप अपने माइंड में रखेंगे। तो अपाचे भी 4th जनरेशन, 3.5 जनरेशन है, ठीक है, 4th जनरेशन है। 5th जनरेशन पूछा था, 4th जनरेशन पूछा, हाँ 5th में 4.5 राफेल है, हाँ। तो उस केस में हाँ 5th जनरेशन, आई थिंक कि 4th जनरेशन, 5th जनरेशन में कोई भी नहीं है, तो दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसीलिए मेरा है कि जहाँ पे भी जो हमारे पास है, वी आर लैक इन टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट सेलिब्रेट करता है कि हमने ये कर लिया, एक्सेप्ट द इसरो, हमारे पास बाकी कोई डिपार्टमेंट अभी ऐसा नहीं है जिसने बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी निकाला है। इसरो इज़ लाइक बहुत अच्छा काम कर रहा है इन द वर्ल्ड लेवल, एट द इंडिया लेवल ऑल्सो। तो इसरो इज़ द एजेंसी, क्योंकि उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। The main reason why the ISRO is working very good because it's not having the political control. जितने भी autonomous institution इंडिया के हैं, they are working very good. IIMs, IITs and ISRO. DRDO Defense Research Institute डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया था, वो हमेशा गिरता ही रहता है। हाँ, ब्रह्मोस टाई अप विद रशिया, हाँ रशिया, हाँ रशिया के साथ टाई अप है और मोस्टली टेक्नोलॉजी रशिया से ही आई है। हाँ हाँ वही। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं वही वे फॉरवर्ड होते हैं। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट, वी नीड टू इंसेंटिवाइज द प्रोड्यूसर, जो गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट पार्टी को हमें इंसेंटिवाइज करना होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस पे हम कभी फोकस नहीं करते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द R&D। Initiate green hydrogen standards and labeling programs. Different kind of the initiative is required, like the Atal Tinkering Lab start हुए थे, तो वहीं से आपको एक लैब टाइप कंडीशन क्रिएट कराना होगा कि आफ्टर ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम दे कैन बी सम रिसर्च वर्क इन एवरी मेजर इंस्टीट्यूशन लाइक द IITs, दे आर सम लैब्स, वहाँ पे स्टार्ट होता है रिसर्च वर्क दैट्स स्पेसिफिकली फोकस रिलेटेड टू द हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स, तो वो हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट एंड इंटर मिनिस्ट्रियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, ये बात होती है, आप हर जगह डाल सकते हो, ये पॉइंट हर जगह यूज हो सकता है, जब कुछ नहीं होता तो ये बना दो यार, ठीक है। तो दिस इज द ग्रीन हाइड्रोजन वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन क्विकली। ये हमने कर लिया है, दिस वाज द क्वेश्चन इन 2023। सब लोग बताएंगे। कौन सा गलत है? थर्ड क्यों नहीं है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर इवॉल्विंग डे बाय डे। अभी ये भी बन चुका है, थर्ड स्टेटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, कार मैन्युफैक्चर स्टार्टेड दिस वन। तो इन द केसेस जहाँ पे हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखता है, हर क्वेश्चन में नहीं देखेगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, if we are getting those kind of the statement that is possible, yes it can be possible, it can be used in the hydrogen fuel cell, हो सकता है, it can be blended with the natural gas, yes can be done, maybe not a large scale। आप क्या करते हो ना, पूरे वर्ल्ड को देखते हो, कार चल सकती है नहीं चल सकती, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट हो, मे बी द लैब्स में भी तो हो सकता है ना, लैब्स में वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है।
हाँ, तो हमें अपना एक बर्ड आई व्यू भी चाहिए व्हेन वी आर आंसरिंग द क्वेश्चंस कि किस कॉन्टेक्चुअल में पूछा गया है कि दिस कैन बी डन और नॉट. यस, ऑल थ्री आर करेक्ट हियर, तो आंसर इज 3 हियर. So this is the question in 2023. So that's also a simple question, but the logic applied. लेकिन वहाँ पे नहीं लगता है, वहाँ पे फिर वही दो लॉजिक लग के बी ठीक होता. So ये आपको डेवलप करना है. दिस शुड बी द प्रोसेस. अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. जीएस का कोचिंग किस किस का कंप्लीट हो गया है? बाकी सबका हाफ हो गया होगा, 3-4 महीने. ठीक है, अभी टाइम है. दिस इज द टाइम. सोचो, अप्लाई करो कंसेप्ट्स में. क्लासरूम में आई थिंक कि बहुत कम बताया जाता है इस तरीके से कि आपको कैसे सोचना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन पे ही जोर होता है. आओ खत्म कराओ जाओ, दैट्स काइंड ऑफ द थिंग रिक्वायर्ड. बट आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे जाना होगा कि हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. टारगेट तो यही है ना कि प्रीलिम्स निकाल लेना है. टारगेट तो ये नहीं है कि मेरी बायोलॉजी खत्म हो जाए, मेरा इकोनॉमी खत्म हो जाए. इवन आफ्टर डूइंग द क्लासरूम्स आई कैन टेक अ बेट कि अगर 2000 बच्चे हैं तो उसमें से 20 लोग ही ऐसे होंगे कि जो आंसर्स कर पाते हैं, 1980 नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द इश्यू इन द कि हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इज द मेजर थिंग. नेक्स्ट पे आते हैं. दिस इज द 2015 क्वेश्चन. ध्यान से सोचना और क्या आंसर होना चाहिए सोच के बताना. सी कौन कौन बोल रहा है? सी तो गलत है. सिंपल सा फंड है यार, डायरेक्ट करंट आता है, डीसी होता है. डीसी होता है तो थर्ड गलत है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है. वी लेफ्ट विद ओनली वन. तो सेकंड हमें आता हो या ना आता हो, दैट डजंट मैटर. एसी इज दिस वन एंड डीसी इज दिस वन. इन्वर्टर से जब लाइट आती है डायरेक्ट करंट आता है, दैट्स वाई ट्यूबलाइट भी आवाज़ करते हैं, फैन भी आवाज़ करते हैं. जब नॉर्मल लाइट्स घर में सप्लाई आती है तो कोई आवाज़ नहीं होती है, दैट्स अल्टरनेटिंग करंट. डीसी नॉर्मली प्रोडक्शन में होता है, इंटरनेट के. हाँ हाँ हाँ, कन्वर्ट होता है तो वो आवाज़ रीजन, दैट्स वाई. हाँ, बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं. अभी तो बहुत न्यू मॉडिफिकेशन के इन्वर्टर आ गए हैं. 2012-13 के आसपास देखो तो घूम ऐसे पंखा चलता था, बहुत तेज आवाज आती थी. दैट्स अ काइंड ऑफ द डीसी. ठीक है, तो अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान रखो क्या होता है. तो दिस इज 15 क्वेश्चन. तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि बहुत हाई फाई पूछा है उसने. हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड, fuel cell can be used for powering buildings and not for small devices like the laptops and computers. वही मैंने बोला. नहीं, वही मैं बता रहा हूँ. आपने फिर उस लॉजिक को हर जगह फिट करने की कोशिश करी. थोड़ा सा नॉर्मल सोच लो. स्मॉल डिवाइसेस में मोबाइल्स में आएंगे. मोबाइल्स में किस मोबाइल में अपने हाइड्रोजन सेल लगी हुई देखी है? अब अब आफ्टर द अब आफ्टर द 100 years आ जाए तो जब हम होंगे ही नहीं तो हमारे लिए तो नहीं है ना वो. हाँ, तो हर जगह एवरीथिंग विल नॉट बी फिटेड. ये भी याद रखना, कहीं आप सर ने बोला था कैन बी जहाँ सही कर दो थोड़ा सा. हाँ हाँ, ऑप्शंस वही ना, आपको अगर ये पता लग जाता तो एलिमिनेट हो जाता है, तो कोई इशू नहीं रहता. ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हीकल जो है बाहर से, उसमें बैटरी से प्रोडक्शन आ रहा है. ग्रीन हाइड्रोजन में सेल लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन. अब दोनों में एक में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर बैटरी में फिट हो गई है, इसलिए चार्जिंग की जरूरत पड़ती है. ठीक है,
दूसरा व्हीकल लेते हैं पेट्रोल, जिसमें पेट्रोल टैंक में आप फिल कराते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी फिल कराएंगे, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन फिल कराएंगे आप। तो तीनों का प्रोसेस अलग है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, ठीक है। दिस इज द मेंस क्वेश्चन, तो लिख लीजिए आप। इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड द चैलेंजेस इट्स फेस इन इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क का, 150 वर्ड्स, 10 मार्क का, 150 वर्ड्स। ठीक है, लिखिए। तो वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस, क्यों चाहिए, एंड द चैलेंजेस क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 2 ही हैं, तो आप उससे स्टार्ट करेंगे। द इंट्रोडक्शन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू कैन स्टार्ट विद द करंट कॉन्टेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द हाउ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, इंडिया में स्टेटस क्या है वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मिशन आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये द नेक्स्ट हेडिंग, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। किस चीज़ के मोबाइल फ़ोन में है फेशियल रिकॉग्निशन, सब में आ गया आपका, ठीक है। किस बेसिस पे काम करते हैं, हाँ हाँ हाँ, आईफोन्स, एंड्रॉयड डिवाइसेस, एंड्रॉयड में भी मल्टीपल हैं। अब शाओमी अलग यूज करता है, और कौन कौन से आते हैं, वीवो अलग यूज करता है, ओप्पो अलग यूज करता है, एंड सैमसंग हाई लेवल यूज करता है। हाँ पता है मुझे, इट्स लाइक दीज आर द सिस्टर कंपनी, जैसे Hyundai है एंड किया है, किया सेल्टोस एंड किया एंड द Hyundai आर द सिस्टर कंपनी। Hyundai हैव द 45% ऑफ शेयर इन द किया, तो वो सिस्टर कंपनी है। सिमिलरली Volkswagen एंड Skoda आर द सिस्टर कंपनी, सिमिलरली इन द OnePlus, Oppo एंड Vivo, दीज आर द सिस्टर कंपनी, एक ही ओनर है तीनों का। ओके, so specifically face recognition technology, face recognition technology are those technology we are identifying the feature of our faces depend on the different kind of the conditions। ये मल्टीपल तरीके के लिए यूज हो सकता है। फर्स्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर द अनलॉकिंग अवर फोन, ये हमारे फेशियल फीचर्स को देखता है या फेस की इमेज को देखता है, दैट्स अ लाइव इमेज की दिस अ वर्किंग इमेज, then they are opening the our mobile phone। Second, it can be used for the different kind of identification, like the it can be used for the terrorist को चेक करने के लिए आपको एक मिरर टाइप बना दिया, आपका फोटोज को दिखाया जाएगा, एंड सर्च इट्स डाटाबेस के थ्रू सर्च करेगा, लाइक आधार कार्ड, आधार कार्ड इज डेटाबेस, आपके आइरिस प्रिंट्स लिए गए हैं वहाँ पे, तो थ्रू योर आइरिस स्कैनर दे कैन आइडेंटिफाई योर इंफॉर्मेशन थ्रू द काइंड ऑफ द डिवाइसेस। So facial recognition technology recently was in news because the NITI Aayog released a white paper. White paper is not a blank paper. White paper means the complete information about the facial recognition technology. They released a report about the FRT कि facial recognition technology का reports क्या है, and under this report there is a responsible AI for all, and this was a specifically the line for the report, the heading for the report, the responsible AI for the all under the facial recognition technology. So under the facial recognition technology, there is a specific mechanism through which it's required to scan your image. The first can be capturing and scanning, that we are using in our mobile phones. It's capturing our image and it's scanning. Yeah, you are the person, आप unauthorized नहीं हो, you are authorized person to use your data. Second, extracting the facial data. In the case of the terrorism, in the case of the data identification, in the case of the missing person identification, we are using the extracting facial data, जहाँ पे हमारे पास facial data and we need to identify the person, ये person कहाँ पे locate है, कहाँ रहता है, क्या इसके locations है। Then after adding the extraction के बाद हम उसके data को compare करते हैं with the database, and after matching we are finding the identity of the person. So this is the how the FRT work. Recently DG यात्रा का नाम सुना होगा, on the airports DG यात्रा technology is based on this। आपको faceless assessments कि आपको जाओगे
आपको चेक करेंगे विदाउट एनीथिंग, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो इफ़ यू आर हैविंग एप्लीकेशन डीजी यात्रा, वहाँ से आप ऑटोमेटिकली एफआरटी टेक्नोलॉजी यूज करके यू कैन एंटर इनटू द एयरपोर्ट. In the some of the states like the Uttar Pradesh, there is a different kind of technology they are using for the missing person. In the Telangana, there also a Darpan scheme, जहाँ पे specifically for missing individuals के लिए दर्पण schemes use होता है. You can show the images. They are having a database. They can show you कि this person is missed or dead or something else कि क्या हुआ है. तो दर्पण scheme है तेलंगाना. In the case of the 2021 में जो कुंभ मेला हुआ था, वहाँ पे हर एक पर्सन पे लाइक जूम इन जूम आउट कैमराज यूज हुए हैं. थ्रू द जूम इन जूम आउट कैमरा वी आर ट्रैकिंग देयर फेसेस कि कोई अटैक ना हो जाए, कोई टेररिस्ट ना हो जाए, एंड वी आर चेकिंग द रैंडम इमेजेस. वो रैंडम फेस पिक्चर्स लेने के बाद हम अपने डेटाबेस में फीड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, एंड वी आर चेकिंग कोई अननोन इंडिविजुअल्स तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टेट इज हैविंग द डेटा ऑफ द ऑल इंडियंस नाउ. हमारे पास सबका डेटा है ना, आधार कार्ड तो सबके पास ही है अब. So that's kind of the data कि we are continuously scanning, or we also having a database related to a terrorist, we are also having a database related to the thieves. तो वो सब हम मैच करते रहते हैं continuously. So the how the FRT is evolving continuously कि face recognition technology कैसे कैसे काम करती है. तो specifically आप नाम लिख लो उन टेक्नोलॉजी का, so you can quote in your mains answer, क्योंकि आंसर्स में एग्जाम्पल्स के बिना कुछ नहीं है. राइट डाउन. सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू में कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है. In the case of security related issue, uses of लिखो, uses of facial recognition technology, uses of facial recognition technology. Number one, security uses. Number one में लिखेंगे security uses. Number one लिखें identification of person of interest, identification of person of interest. Example में लिखें उत्तर प्रदेश त्रिनेत्रा, उत्तर प्रदेश त्रिनेत्रा फॉर रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. यूपी त्रिनेत्रा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन दर्पण इन तेलंगाना, दर्पण इन तेलंगाना. त्रिनेत्रा, identification of criminals. Monitoring and surveillance, China Skynet project, China Skynet project specifically यूज करता है चाइना फॉर सर्विलेंस इन द बॉर्डर एरिया. चाइना स्काईनेट प्रोजेक्ट. क्राउड कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल में लिखेंगे जूम सर्विलेंस कैमरा, जूम सर्विलेंस कैमरा कैमरा यूज्ड इन कुंभ 2021, कुंभ 2021. तो जब आप आंसर लिखते हैं तो इस तरीके के रियल टाइम एग्जांपल चाहिए होते हैं लिखने के लिए, कहाँ पे इंडिया में यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, तो वो आपको मेंशन करना होगा. सो दिस फर्स्ट वन वाज द सिक्योरिटी रिलेटेड यूजेस. सेकंड लिखेंगे आप नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड यूजेस. सेकंड लिखें नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड यूजेस. फर्स्ट लिखे उसमें फर्स्ट पॉइंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन. एग्जाम्पल लिखे इसमें आधार कार्ड. सेकेंड पॉइंट ease of EAS, ease of access to service, ease of access to service. डीजी यात्रा, एग्जाम्पल में लिखे डीजी यात्रा फॉर ऑनबोर्डिंग एट एयरपोर्ट्स, डीजी यात्रा. डीजी यात्रा ऑनबोर्डिंग एट एयरपोर्ट. थर्ड लिखें इसी में IDs in educational institution, IDs in educational institution, educational institution. Face matching technology, face matching technology
educational face matching technology, educational, used by CBSC, used by CBSC. Yes, Ganesh, the China Skynet project, China Skynet project, ठीक है. Face matching technology, educational, for authentication of students, for authentication of students by CBSC, by the CBSC. Now these are the usage. कब हम सिक्योरिटी में यूज करते हैं, कब हम नॉर्मली यूज करते हैं, फॉर द एक्सेसिबिलिटी यूज करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर द इश्यू रिलेटेड टू द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. क्या क्या मेजर इश्यू हो सकते हैं, सोचो. प्राइवेसी हो गया, सबको पता है कि प्राइवेसी इंडिया में डेटा सेफ नहीं है, ठीक है. प्राइवेसी लीक. सेकंड, हाँ, आइडेंटिफिकेशनल इश्यूज. एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आइडेंटिफिकेशनल इश्यूज हैं, स्पेसिफिकली नोटेड डाउन इन सम ऑफ द वेज, जहाँ पे वो पहचानने से मना कर देता सेम इंडिविजुअल्स को और एंट्री नहीं देते एयरपोर्ट्स में थ्रू द डीजीआर. इन द सम ऑफ द केसेस आईडी मिसमैच हो जाती है, आपका आईडी का डेटा मिसमैच है जिसकी वजह से वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. थर्ड इशू, दे मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉडी स्ट्रक्चर्स, मेल फीमेल को डिफरेंशिएशन करने में भी देयर इज एन इशू रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी. हाँ हाँ, ये देखा गया था स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द जॉब प्रमोशन इन द गूगल्स, ड्यूरिंग द जॉब प्रमोशन इन द गूगल, AI identifying only males for the top level of the position. Discrimination by the AI. He choose only the males candidates for the higher post instead of the female candidates. Similarly, in the case of the Amazon, there was the AI related to the Amazon AI that's also do the discrimination between the male and the females. वहाँ पे भी entry exit वाले points पे there was a discrimination related to the male and females. So it's having the main various kind of the issue like the inaccuracy, automobile bias and the underrepresentation of the databases. Accountability नहीं है. मान लो कि अगर AI ने गलत किया, किसको बोलेंगे कि इसने गलत किया? गवर्नमेंट मानेगी नहीं क्योंकि AI की गलती है. अब AI जिस इंजीनियर ने बनाया बोलेंगे मैं मुझे थोड़ी पूछा था आप यहाँ पे यूज करने वाले उसको, तो किसको पकड़ेंगे? तो अकाउंटेबिलिटी इशू है. टेक्निकल फैक्टर्स हैं, इंडिया में हमेशा टेक्नोलॉजी डाउन होती है. अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ डाउन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी 1000 ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी. देन द लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन ऑपरेटर्स, फिर वही स्किल्स वाला आ जाता है कि स्किल इशू नहीं है. एंड द अकाउंटेबिलिटी, लीगल लायबिलिटी क्या होगा? मान लो डेथ हो गई किसी पर्सन की ड्यू टू द AI, पॉसिबल है. ऑपरेशन हो रहा है थ्रू द रोबोटिक्स, बंदे की डेथ हो गई, AI के थ्रू MRI करा दिया आपने, उसने कुछ और कर दिया, डेथ हो गई, तो हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? नो वन. अभी तक तो ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में. हाँ हाँ, ज़्यादा आपका ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया है, पल्स रेट, ब्लड इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा इंक्रीज कर दी है AI ने, बिकॉज ही हैड नो आइडिया कि पर्सन का किस स्टेबिलिटी पे, इमोशन थोड़ी है, उसको पता थोड़ी कैसे चल रहा है. तो दैट कैन बी द अकाउंटेबिलिटी इशू and the legal liability on the hospital departments, legal liability on the technology manufacturers. So these are the issue related to the facial recognition technology, that issue we are facing currently. Data leak सबको ही पता है, meaningful consent and private security use. So these are the कि किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है. गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी बताया था कि हम आधार कार्ड किस लिए यूज करेंगे. जब 2011 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, does the government told कि हम आपको ट्रैक करने के लिए यूज करेंगे? नेवर. पर्पज, डेटा लीक्स, बहुत सारा डेटा इंडिया में लीक होता है. बहुत बार तो इन्फॉर्मेशन आई है कि PM का अकाउंट ट्विटर का हैक हो गया. अगर PM का अकाउंट नहीं बच सकता तो हु आर वी? तो पॉसिबल नहीं है. लैक ऑफ मीनिंगफुल कंसेंट, हर किसी एप्लीकेशन को हमारे कॉन्टैक्ट एक्सेस क्यों चाहिए? हर किसी एप्लीकेशन को हमारा मोबाइल कैमरा एक्सेस क्यों चाहिए? उसके गवर्नमेंट का कोई रूलिंग भी नहीं है कि आप क्यों चाहिए आपको एक्सेस. मुझे आपका यूज करना है सिर्फ मैपिंग के लिए. व्हाई यू आर वांट माय लोकेशन, मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको क्या मतलब है उससे? तो व्हाई यू नीड एक्सेस ऑफ माय कॉन्टेक्ट्स, कि आप उनको टेक्स्ट क्यों करना चाहते हैं? तो दैट्स काइंड ऑफ द मीनिंगफुल कंसेंट आपके पास है ही नहीं. प्राइवेट सिक्योरिटी यूज के लिए आप लोग करते हैं, पर्सन को ट्रैक करने के लिए. मान लो अब उबर से राइड करते हैं, अब आज तक कल उबर में हर महीने एक मेल आता है. जब भी आप उबर से राइड करेंगे यू विल गेट अ मेल आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ. आप 8 बार राइड किया आपने, आप यहाँ से यहाँ गए, इस टाइम पे यहाँ पे थे, आपने ये चीज़ किया, तो पूरा डेटा उनके पास है आपका.
मैं सुबह टैगोर गार्डन से राजेंद्र नगर आ रहा हूँ डेली, दे हैव द आइडिया कि आई एम कमिंग डेली फ्रॉम एट दिस टाइम, गोइंग आउट एट दिस टाइम. हु इज लुकिंग एट दैट डेटा? कोई नहीं देख रहा है उसको. हर जगह ये डेटा मिसयूज होता है. उसी तरीके से मुझे उस टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आएंगे स्विगी से, लंच में मिस कर रहे हो, इस तरह. इस 2 बजे के आसपास यही आएगा. 5 बजे के आसपास जोमेटो का नोटिफिकेशन आएगा, चलो चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा. दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, हाउ दीज थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, हाउ द टेक्नोलॉजी यूजिंग अस. वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूजिंग अस फॉर मेकिंग द प्रॉफिट्स. हाँ, वी आर द प्रोडक्ट्स ना. पहले हम लोग चलाते थे, अब प्रोडक्ट्स हमें चलाते हैं. फॉर एवरीथिंग वी आर द प्रोडक्ट्स एंड वी आर यूजिंग एवरीथिंग, बट प्रोडक्ट्स आर यूजिंग अस. नाउ दैट्स अ कंडीशन हियर. हाँ, दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग. लो है हमारे पास, ऐसा नहीं है नहीं है, अब मानता ही नहीं है कोई. जब स्पेसिफिकली ये बताओ, मिनिस्टर आर नॉट फॉलोइंग द लॉ. वो टोल 50 रुपए का टोल देने के लिए लड़ाई कर लेते हैं. हर रोज कोई ना कोई वीडियो आती है. एसडीएम लड़ाई करता है 50 रुपए का टोल देने के लिए. यार आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 50,000 रुपए का टोल दे दो आप लोग, क्या इशू हो रहा है उसमें? ठीक है, आपको अलाउ है कि समटाइम द पर्सन हु आर सिटिंग ऑन अ टोल, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड कि उनको पता हो कि इसको अलाउ है या नहीं अलाउ है. तो समटाइम यू कैन ऑल्सो शो योर स्टेटस ना, कि हाँ ठीक है यार, ले ले 50 रुपए, लेट्स गो, टाइम इज मोर प्रीशियस. वो फाइट करने लगते हैं, घर मार देते हैं. दैट्स अ काइंड ऑफ द कंडीशन वी हैव. तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन बनाने वाले ही फॉलो नहीं करेंगे तो हाउ वी कैन थिंक कि वी कैन फॉलो. अब ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खुद तोड़ रहे हैं. डेली आप देखोगे इन द पूसा रोड, ट्रैफिक पुलिस वाले फुल स्पीड में जा रहे, रेड लाइट क्रॉस कर रहे, कंटिन्यूअसली क्रॉस कर रहे. तो उनके पीछे पब्लिक तो जाएगी ना. तो हाउ यू कैन कंसीडर दैट थिंग्स. तो ये सब एजुकेशनल लेक्यूना है, क्योंकि हमें बचपन में ये नहीं सिखाया जाता कि रेड लाइट क्यों नहीं क्रॉस करनी चाहिए. सिखाया जाता है क्योंकि आपका चालान हो जाएगा, इसलिए नहीं करनी चाहिए. दे आर नॉट टीचिंग अस कि इट कैन बी लीड टू डेथ ऑफ यूअर्स. वो नहीं पढ़ाते हैं. वो हमें डर सिखाते हैं कि हाँ, हेलमेट क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाला आगे खड़ा होगा नाके पे, आपका चालान काट देगा. इट कैन बी कोज ऑफ योर डेथ ना यार. कोई भी व्हीकल आपको टक्कर मार सकता है. दैट कैन बी द फॉर यूर सेफ्टी, नॉट फॉर द कि 500 का चलान हो जाएगा, 1000 का चलान हो जाएगा. दैट्स काइंड ऑफ द जनरेशन वी आर. और कंटिन्यूसली वही है. हमें हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी? वन पर्सन इज स्टैंडिंग इन द क्लास रीडिंग द चैप्टर्स. वी डोंट नो हु इज अकबर, वी डोंट नो हु इज शाहजहां, बट चल रहा है. अकबर आया, शाहजहां गया, उसने मुमताज के पास गया, ताजमहल बनाया, बट वी डोंट नो द स्टोरी. दैट्स अ काइंड ऑफ द थिंग. दिस इज द एजुकेशनल सिस्टम. अभी भी है, अभी भी वही चीजें चल रही हैं कंटिन्यूअसली, एंड दिस इज गोइंग ऑन. और ये चलेगा. फिर अभी 50%, 55% अनएम्प्लॉयबल है. 10 साल बाद 65, 75, 85% फिर कहेंगे कि कोई भी एम्प्लॉयबल नहीं है, हम बाहर से बंदे लाएंगे. दैट्स अ काइंड ऑफ इराविया. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. द क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस. कौन सा, किस चीज में, किस चीज के लिए? पेगासस सॉफ्टवेयर. यस, वो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है कि अगर आपको, वो तो पता लग गया जब कांग्रेस था तो वो भी लेती थी यार. ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी नहीं लिया, हर कोई करता है. एवरीबडी वांट टू ट्रैक देयर ओपोजिशन. हर कोई ट्रैक करना चाहता है कि वो क्या कर रहे हैं. हर जगह होता है, हर जगह होता है. लाइक ऑनलाइन चल रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, कल को क्लिप्स बाहर आ जाएंगे और मुझे यहाँ से बोला. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. रोजी रोटी का सवाल है, तो लेट्स ट्राई टू आंसर. With reference to the facial recognition technology, consider the following statements. FRT use biometric software to identify individuals based on their unique facial features. It's exclusively used for security and surveillance purpose by law enforcement agency. There is no concern of privacy. मुझे statement पे ही concern अब. ठीक है, तो 3 can be eliminated, 1 and 2 पक्का. B. Answer will be B. Answer is B here. Second and third is incorrect. Okay. थक तो नहीं गई हो? Can I take 10 more minutes? ठीक है, 4-5 टॉपिक जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत छोटे हैं. स्नो ब्लाइंड मालवेयर. अभी हम मोबाइल फोन्स की बात कर रहे थे. नाउ दिस इज अ मालवेयर इन योर मोबाइल फोन्स दैट इज ट्रैकिंग योर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन. अभी तो चाय पानी तक ठीक था, अभी एक अकाउंट भी चाहिए इसको. स्नो ब्लाइंड मालवेयर, दिस इज अ मालवेयर दैट्स अटैकिंग द एंड्रॉइड डिवाइसेस. तो लिख लो, बस यही इन्फॉर्मेशन है.
It is attacking the Android devices, specifically for their financial information. And this is like a tagging with the some other app. कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं आउटसाइड द गूगल प्ले स्टोर, समटाइम वी ट्राई टू डाउनलोड द क्रैक वर्जन्स, तो एपीके डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो उन एपीके के साथ ये भी अटैच्ड है इन द फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस. तो इट्स ट्रैकिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग योर डेटा, टेकिंग योर डेटा. आप कोई भी पिन डाल रहे हैं, यूपीआई पिन डाल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के आपका डिटेल्स है, तो इट इज टेकिंग आउट दैट डेटा आउटसाइड. सो दिस इज द स्नो ब्लाइंड malware. And the question can be directly, this was recently mentioned in the news, this is related to, that's a simple question can be framed here. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल. अभी हमने बात करी थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की इन द जीएम क्रॉप्स. दीज एंजाइम्स नेचुरली नहीं प्रेजेंट थे, उसके बाद हमने इनको बनाया, मैन्युफैक्चर किया. बट रिसेंटली नाउ द साइंटिस्ट हैव रिसर्च द न्यू काइंड ऑफ द DNA editing tool that is naturally existing into the human body. In this case of the naturally existing DNA editing tool, scientists told that in the end of these editing tools, like this is editing tools, there are few DNA sequences are present. Few DNA sequences are present, and these DNA sequences are first converted the DNA into the single-stranded DNA, and then finally help in the cutting the specific units. Cutting the specific units, and these they are doing through the jumping genes. Last class में पढ़ाया था, what is the jumping genes? पढ़ाया था, छोड़ दिया था मैंने. ओके ठीक है. So in the case of the jumping genes, and the name suggests, these are the sequence of the DNA that are continuously movable. These are small segments. Small segments of the DNA that are the continuously movables, and they are helping in these naturally existing DNA editing tools for the editing purpose. So if there is a question related to the restriction endonuclease enzyme, if they are occurring naturally in the human body, yes, they can occur naturally in the case of the human body. This is a recent research of July 2024. ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट आ सकता है, जिसका नाम है स्पेसिफिकली. अभी तक हमारे पास ये 4 टूल्स थे. वन इज द CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है CRISPR-Cas पे. अदर इज द टेल न्यूक्लिएजेस, जिंक फिंगर न्यूक्लिएजेस, एंड द RNA इंटरफेरेंस. द नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू देयर कटिंग द DNA सीक्वेंसेस, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम गिवन है. तो देयर आर 4 नेम: CRISPR-Cas9, टेल न्यूक्लिएज, जिंक फिंगर न्यूक्लिएज, एंड द RNA interference tool that we are using here. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लीजिए आप, 2 लाइन. गिवन हेडिंग, ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म. ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म. Bridge recombinase mechanism. Short form is BRM. BRM utilize mobile genetic elements, ब्रैकेट में लिखे jumping genes, which cut and paste themselves into genomes, performing on the go DNA manipulation, and are present in all forms of life, write the definition of jumping genes. Jumping genes are small DNA segments with the recombinase enzyme along with
along with extra DNA segments, along with extra DNA segments at the end of the genes, at the end of the genes that binds and manipulates DNA, that binds and manipulates DNA. Okay, so these are about the bridge recombinase mechanism. बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये नेचुरली प्रेजेंट हैं. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर आल्सो नेचुरली प्रेजेंट. आर्टिफिशियल पहले थे, अभी दिस इज द वन ऑफ द नेचुरल वन. काम सेम है, जैसे उससे एडिटिंग हो रहा था वैसे ही इससे होगा. एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो इट विल टेक द टाइम. तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, 3 पेरेंट बेबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने. नाउ दिस इज सक्सेसफुल इन द मोस्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया में भी सक्सेसफुल हुआ है रिसेंटली. मीन्स द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कैन बी प्रिवेंट थ्रू द IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. लाइक दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज डैमेज. ये माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे है ये डैमेज है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती नहीं है, बट ओनली द सेक्स क्रोमोसोम पे जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल. बट माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो हैविंग द जेनेटिक मटेरियल, दैट्स अ DNA. So this is the parent that's having the faulty mitochondria. Now we need to replace this faulty mitochondria with the donor. This is the donor mother, जिनका जो ओवा होगा, स्पेसिफिकली एग होगा. This is also having a mitochondria. Now we are taking this embryo from here and we are introducing here. इनका एग हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम इस एम्ब्रियो को इंट्रोड्यूस करेंगे. So now the new children is having the genetic material of the 3 parent. One is the father, second is the mother, third is the donor mother of the mitochondria. So this is known as 3 children baby. ठीक है. इसका अगर फिगर में देखें साफ में, 1 patient egg cell, this is the mitochondria, that is a faulty mitochondria. We need to replace. We are adding this through nuclear DNA, and this is the reconstructed egg and again implanted into the mother, and this is known as the 3 parent baby. In 2018 UPSC में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है. Almost 5-6 years हो चुके हैं. Technology developing, so again there can be a chances of questions. Okay, so this is done from my side. Next we are going to meet after the 20 days on the same Friday with the same time 2:30 with the new concepts. I hope you like the session. Next class में we are trying to cover, थोड़ा सा जल्दी करेंगे so we can cover the more topics. Thank you. PDF, you can join the current affairs group on the Telegram, or you can directly text to me. I am going to share on the Shabir@Edukemy Telegram channel है, वहाँ पे भी शेयर हो जाएगा. करंट अफेयर्स वाले में भी हो जाएगा और CSET वाले में भी हो जाएगा, so you can download from there.